चलिए, so in the previous lecture we have discussed about the incomplete dominance, right? We have seen two examples. One is in Snapdragon, right? Antirrhinum. और किसमें देखा था एग्जाम्पल हम लोगों ने? Mirabilis jalapa. Today one more example, and which is very very important, that is of Andalusian फाउल. अंडालूसियन फाउल का एग्जाम्पल देखते हैं. इट इज अगेन द एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस. ये भी कहाँ का एग्जाम्पल है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है. द इनहेरिटेंस इन अंडालूसियन फाउल कैन बी, हम इसको कैसे कर सकते हैं? दो वे से कर सकते हैं, बाय टेकिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स. फॉर एग्जाम्पल, इन दिस the genes which we have, and they are responsible for the different type of phenotypes, like we are taking this, either this or this one, right? So these genes indicates the color phenotype, right? Capital B is for black color. This one heterozygote is for slate blue color, and this one is for white color. Or either we can take the gene in a little different manner, like we can take either B1 or B2, right? B1 stands for, again, is for black, right? And B2 is for white. Clear? So we will be taking, चाहे हम ऐसे ले सकते हैं B1 और B2, और either we can take like this manner. इस manner में भी हम इसको लेकर के क्या कर सकते हैं? क्रॉस को परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है. क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, either in this form or either in this form. So never get कंफ्यूज. तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. क्लियर हो गई बात? सो इसमें होता क्या है अंडालूसियन फाउल में, आप लोग देखेंगे द ब्लैक वेराइटी इज क्रॉस्ड विद द वाइट प्योर वेराइटी, राइट? तो कराइए क्रॉस. इज क्रॉस्ड विद वाइट, ब्लैक फाउल इज क्रॉस्ड विद प्योर वाइट, राइट? सो अगेन two gametes from here and two gametes from here, and if we plot the Punnett square for this, right? So here at one side we take this, and at one side we take this. So because we are just taking the example of incomplete dominance, so we know that the dominant allele is incompletely dominate over the recessive allele. Recessive allele के ऊपर ये क्या होगा? Incomplete dominant होगा. It means the heterozygote which are produced is in F1 generation, they are not black nor white. They are of a different phenotype, that is of slate blue in color. तो ये किस कलर के बने हैं सब? This is, we have our F1 individual or F1 generation, and they all are of blue color, right? Not pure blue, but it is a slate blue. ठीक है. So if we self, अगर इनको self कराया जाएगा, if we self these slate blue, so क्या होगा? What will be the ratio? Right? Again, two gametes, right? Again, क्या possibilities हो सकती हैं? Either we can draw the Punnett square, or either we can write directly capital B, capital B, capital B, small b, capital B, small b, small b, and small b, right?
So this one is again we obtain a pure black. Here we can obtain a pure white, and these two are slate blue. So what could be the ratio? 1:2:1. Both the genotypic ratio as well as the phenotypic ratio in case of incomplete dominance are same. इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में जो हमारा रेशो रहता है जीनोटिपिक रेशो और फिनोटिपिक रेशो इन F2 इंडिविजुअल आर सेम, दैट इज 1:2:1. यही जीनोटिपिक रेशो है और यही फिनोटिपिक रेशो भी है. राइट, क्लियर हो गई बात. जैसे हमने कल एग्जाम्पल, इसमें एक हमने कल एग्जाम्पल पढ़ा था काहे को लेकर के, लीव्स को लेकर के और फ्लावर कलर को लेकर के. राइट, तो वो जो आपका एग्जाम्पल था वो हमने डाईहाइब्रिड की फॉर्म में पढ़ा था. इट कुड बी कम इन अ मोनोहाइब्रिड ऑल्सो. वो मोनोहाइब्रिड के फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है. राइट, तो हमने दो प्लांट पढ़े थे कल. एक हमने पढ़ा था 4 o'clock प्लांट, दैट इज मिराबिलिस जलापा, और सेकंड हमने पढ़ा था स्नैपड्रैगन, दैट इज एंटीरिनम. तो दोनों के केस में अगर फ्लावर का इनहेरिटेंस देखा जाए सो इट इज सेम. दोनों के ही केस में कैसे फ्लावर होते हैं? रेड इज डोमिनेंट एंड व्हाइट इज रिसेसिव एंड द इंटरमीडिएट कैरेक्टर इज पिंक. दोनों के केस में, ठीक है. लेकिन अगर हम एंटीरिनम की बात करें स्नैपड्रैगन में, तो आपका वहां पर हमने एक और कैरेक्टर ऐड कर लिया था, लीफ को. एक आपकी कैसी लीफ थी? ब्रॉड लीफ. राइट, एक कैसी लीफ थी आपकी? नैरो लीफ, जो रिसेसिव कैरेक्टर था, और इंटरमीडिएट कैरेक्टर कैसा था? इंटरमीडिएट लीफ. क्लियर हो गई बात. तो स्नैपड्रैगन और एंटीरिनम में भी आपसे क्या पूछा जा सकता है? ओनली फ्लावर, यानी मोनोहाइब्रिड के केस में भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है. बिकॉज इन एनसीईआरटी के अंदर आपका जो दिया गया है स्नैपड्रैगन इज द एग्जाम्पल. स्नैपड्रैगन का एग्जाम्पल दिया गया है इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस एनसीईआरटी में, और वहां पर सिर्फ आपको एक मोनोहाइब्रिड दिखाया गया है. राइट, मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस दिखाया गया है. काहे को लेकर के? फ्लावर कलर को लेकर के. क्लियर हो गई बात. तो नेवर गेट कंफ्यूज मत होना. हमने आपको क्योंकि डाईहाइब्रिड क्रॉस का बताया है, वहां पर लीफ भी हमने लिया है एक कैरेक्टर, ठीक है, और दूसरा कैरेक्टर हमने क्या लिया है? कलर लिया है. तो ये आपके मोनोहाइब्रिड यानी सिंगल कैरेक्टर के फॉर्म में ही पूछा जा सकता है, और आपसे डुअल कैरेक्टर के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है. क्लियर हो गई बात. सो ये आपका एंडालूसियन फाउल वाला एग्जाम्पल था, जिसमें आपने क्या देखा? अगेन द रेशो इज 1:2:1 इन F2 इंडिविजुअल. दीज आर प्योर ब्लैक एंड दीज आर प्योर वाइट एंड दे आर द इंटरमीडिएट फिनोटाइप्स. और ये हमारे इंटरमीडिएट हैं जो हमारे कैसे हो गए हैं? स्लेट ब्लू कलर के हैं. विच इज अ चेंज्ड रेशो फ्रॉम द मेंडेलियन लॉज. मेंडल के अकॉर्डिंग, अगर हम इस लॉ को मेंडल के अकॉर्डिंग पढ़ते तो व्हाट विल हैपन्स? दीज टू ऑफस्प्रिंग, ये जो दोनों ऑफस्प्रिंग है ये कैसे होते? दे आर डोमिनेटिंग. इट मीन्स दे टू आर ऑल्सो ब्लैक. तो ये भी कैसे होते? ब्लैक होते. बट हेयर बिकॉज वी आर जस्ट स्टडिंग द वेरिएशंस इन मेंडेलियन लॉज, सो दिस इज अगेन द वेरिएशन इन मेंडेलियन लॉ. सो रेशो इज डिफर. तो यहाँ पर हमारा रेशो क्या हो गया है? डिफर हो गया है. हेयर द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नॉट बीइंग एप्लीकेबल. तो यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल नहीं है. समझ आ गई बात. चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अगेन द एग्जाम्पल ऑफ एलिलिक इंट्रैक्शन. ये हम एलिलिक इंट्रैक्शन के एग्जाम्पल में पढ़ रहा है हमने. सेकेंड एग्जाम्पल इन एलिलिक इंट्रैक्शन इज आवर कोडोमिनेंस. राइट, कोडोमिनेंस हम लोग पढ़ेंगे. ये था इनकम्प्लीट डोमिनेंस. आफ्टर इनकम्प्लीट डोमिनेंस वी विल बी जस्ट सी द कोडोमिनेंस. Right, what is codominance? In codominance what will happen? Both the alleles of a gene pair, right, जो आपका जीन पेयर है, ठीक है, एलिलोमॉर्फ, उसके दोनों जो एलिल हैं, राइट, बोथ द एलिल ऑफ अ जीन पेयर
get expressed in F1 generation। समझ आई बात? यहां पर आपने क्या देखा था? In this case, in incomplete dominance, the F1 individual neither correlate with their parent। ना तो ये अपने डोमिनेंट पेरेंट के साथ रिलेट करते हैं और ना ही ये अपने वाइट पेरेंट के साथ क्या करते रहे, रिलेट कर रहे थे। दे आर कंप्लीटली डिफरेंट। बट हेयर इन केस ऑफ कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस के केस में क्या होगा? बोथ द एलिल, द रिसेसिव एलिल एंड द डोमिनेंट एलिल, बोथ आर गेट एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में दोनों क्या करेंगे? अपने आप को शो करेंगे। द डोमिनेंट एलिल ऑल्सो शो इट्स फिनोटाइप, राइट, its expression, and the recessive allele also show its phenotype or its expression। both दोनों एलिल जीन पेयर के अपने आप को क्या करते हैं? F1 जनरेशन में शो करते हैं। It means the F1 individuals are looking like of both of their parent, अपने दोनों पेरेंट से रिलेट करेंगे, whether it is dominant or whether it is recessive। क्लियर हो गई बात? चलिए देखते हैं इसमें एग्जाम्पल। इन कोडोमिनेंस a very common example is coat color in cattle। ठीक है, कैटल में कोट कलर देखते हैं, या यहां पर हम लोग एग्जाम्पल पढ़ते हैं काहे का? वेरी गुड, AB ब्लड ग्रुप। So never get confused in it. It is AB blood group. It is not ABO blood group. Right? That is of multiple allelism. ABO blood group. It is only AB blood group. Right? So देखते हैं how the inheritance take place. Inheritance कैसे होगा? Coat color in cattle. First example देखते हैं। चलिए। So taking the first example, that is coat color in cattle. कैटल के अंदर अगर कोट कलर की बात करते हैं हम लोग, सो इन कोट इन कैटल वी हैव सी 3 वेराइटीज। हाउ मेनी वेराइटी? 3 वेराइटी वी हैव सीन। फर्स्ट इज वी हैव अ रेड विच इज अ डोमिनेंट ट्रेट। रेड इज डोमिनेंट which stands for R1, right? Here we have white which is a recessive, right? R2, right? And here one more phenotype we have, that is not pink, it is Ron color. If it is pink, it is the example of incomplete dominance, right? So it's not pink, it's Ron color. Ron color is nothing but it is a mixture of both the red and white hairs in coat of cattle। ठीक है, कैटल के कोट में दोनों कलर के हेयर्स हमें देखने के लिए मिलेंगे, रेड ऑल्सो एंड white also। That color is called as a Ron color and that cattle is called as a Ron cattle। समझ आई बात? सो एक कैटल तो हमारी कैसी है? रेड है, कंप्लीट रेड कैटल। ठीक है, जो और रेड कलर एंड इट्स डोमिनेंट, और रेड कलर कैसा है? डोमिनेंट है, जिसको डोमिनेंट हमारा जो जीन है वो कंट्रोल कर रहा है, दैट इज R1। और वाइट जो कैटल है दैट इज रिसेसिव एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय R2 जीन। क्लियर? अब हम देखते हैं हाउ वी गेट द थर्ड वेराइटी और द थर्ड फिनोटाइप। इफ वी क्रॉस इट, अगर इसका क्रॉस किया जाएगा, क्रॉस इज ऑलवेज स्टार्टेड विद द प्योर, दिस इज प्योर रेड कैटल, एंड इट इज
डोमिनेंट, और ये कैसा है, डोमिनेंट है, इज क्रॉस्ड विद R2 that is white cattle and this is recessive. ये कैसी है, recessive है. So again R1 from here R2 plot up unit square. In F1 generation, what we get, R1 and R2. So this is our F1 generation. ठीक है. So if we just follow the typical Mendelian law, अगर Mendelian law को यहाँ पर follow किया जाता, so all the F1 individual were red. सारे F1 individual कैसे होते हैं, red होते, because we know that R1 gene is a dominant gene and according to the law of dominance the dominant gene is completely dominate over the recessive gene. समझ आई बात. तो ये सारे कैसे होने चाहिए थे, red, but they are not red, right? If we just follow the incomplete dominance, और अगर incomplete dominance की बात की जाए, so we know that the dominant allele is incompletely dominant over recessive. It means the color of this F1 individual should be pink, right? But they are not pink. They are a new phenotype, that is Ron color. That is the mixture of red and white hairs. यहाँ पर मिक्सचर बना काहे का, रेड का भी और वाइट का भी. इट मीन्स इन F1 इंडिविजुअल बोथ द एलिल एक्सप्रेस देमसेल्फ, दोनों एलिल ने क्या किया, अपने आप को एक्सप्रेस किया है F1 जनरेशन में. रेड कलर भी आया है और वाइट भी आया है, दोनों कलर आए हैं. इट मीन्स बोथ द एलिल शो itself in F1 generation. F1 generation में दोनों ने अपना आप को शो किया है. That's why this is called as codominance. Codominance means both the allele shows their phenotypic character or express themselves in F1 generation. F1 generation में दोनों ने ही अपना आप को क्या किया है, शो किया है. क्लियर हो गई बात. Now if we self them, सेल्फिंग कराते हैं इनकी. ठीक है. सेल्फिंग के बाद R1 R2 is self with R1 and R2. Clear? So here we get R1 right, R1 R2, again R1 R2, and here we get R2 and R2. So this one is, yes Wes, क्या बनेगा ये, प्योर रेड. वेरी गुड. एंड दिस वन white, pure white, and these two were Ron. So again, what is the ratio? 1:2:1. The genotypic ratio is also 1:2:1, and the phenotypic ratio is also 1:2:1. समझ आई बात. So यहाँ से आपको क्या पता चलता है, both in incomplete dominance and codominance the ratios are same but the inheritance are not same. समझ आ रही है बात. Phenotypically both the crosses are not same, but if we talking about the ratios are same. यहाँ पर भी आपने क्या रेशियो देखा, 1:2:1 in F2 generation, and here also in F2 generation the ratio is 1:2:1, but they both are not same. What is the difference?
What is the difference? The difference is that in incomplete dominance, the dominant allele is not completely dominate over the recessive gene. यहाँ पर completely dominant नहीं हो पा रहा है, and F1 individual are not like their parent. F1 इंडिविजुअल अपने पेरेंट जैसे नहीं है, नीदर दे आर ब्लैक और नॉर दे आर वाइट, ना ये ब्लैक है ना ये वाइट है, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट. बट इन केस ऑफ कोडोमिनेंस, लेकिन कोडोमिनेंस के केस में कैसा है? इन कोडोमिनेंस द F1 इंडिविजुअल में क्या हुआ है? बोथ द एलिल, द डोमिनेंट एलिल एज वेल एज द रिसेसिव एलिल एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन. दोनों ने अपना आपको क्या किया है? एक्सप्रेस किया है, चाहे वो डोमिनेंट एलील था चाहे वो रिसेसिव एलील था. ठीक है, जिसका मतलब क्या हुआ? इफ बोथ द एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ, इट मींस these F1 individual are similar to their parents, डोमिनेंट पेरेंट से भी और रिसेसिव पेरेंट से भी, दोनों पेरेंट जैसे होंगे. समझ आ गई बात? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस. तो ये क्या है? डिफरेंस है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस में. अदरवाइज इफ वी टॉकिंग अबाउट द रेशोज, और जबकि अगर रेशो की बात की जाए तो रेशो दोनों का कैसा है? सेम है. इन केस ऑफ incomplete dominance, the genotypic ratio and phenotypic ratio is 1:2:1, and in case of codominance again the ratio is 1:2:1. clear हो गई बात? And in previous lecture we have already discussed what is the ratio, the genotype ratio and the phenotype ratio in F2 generation when we are taking the two contrasting characters in a dihybrid condition. dihybrid condition में भी हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं. क्लियर हो गई बात? जो हमने काहे में पढ़ा था? स्नैपड्रैगन में पढ़ा था, एंटीरिनम में कर. ठीक है, वहाँ पर हमने दो कैरेक्टर लिए थे, लीफ साइज और फ्लावर कलर. वहाँ हमने इनहेरिटेंस देखा था काहे का? डाईहाइब्रिड का. क्लियर हो गई बात? ओके, सो द अनदर एग्जाम्पल फ्रॉम हियर इज आवर AB blood group. So this AB blood group in man AB blood group. This is important. ठीक है, important क्यों है? Because NCERT explained this example. NCERT ने ये example क्या किया है? explain किया है. That is AB blood group. AB blood group is again the example of codominance. ये भी कहाँ का example है? codominance का example है, right? देखते हैं कैसे है ये codominant का example, right? If we have, it is said that the blood group is controlled by 3 different alleles. 3 different एलिल हैं जो क्या करते हैं? ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करते हैं. एंड दैट जीन वर IA, IB एंड IO. अमंग दीज 3 एलिल्स, इन 3 एलिल्स में से these 2 are dominant and this one is recessive. I0 is recessive, IA and IB is a dominant trait, right? So what does it mean? It means if IA is crossed with IO. समझ आई बात? So because I0 is recessive, so it means it does not produce any protein or any antigen, right, or any sugar. If we talking about in NCERT it is said that they are producing the sugar, ठीक है, on the membrane of RBC, right? So because it is recessive, so it means it does not produce any kind of protein on the membrane of RBC. clear हो गई बात? So if we talking about this trait, so suppose this is RBC, right? So on the membrane of RBC
only A will produce the protein. Clear हो गई बात? If we take the next situation, in next situation, if IB goes with IO, right? So again, what will happen? Because IO is a recessive trait, so it is not express itself. तो ये अपने आप को express नहीं करेगा. Only B is expressing itself on the membrane of RBC. Clear हो गई बात? And if both these allele came in combination, और अगर ये दोनों एलिल किस फॉर्म में आ जाएं? कॉम्बिनेशन, राइट? सो व्हाट विल हैपन ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ RBC, both A will also express itself and B is also express itself. It means both the allele are express themselves. दोनों ही एलिल क्या करेंगे? अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं. And we know that when both the allele expressing itself, that condition is called as codominance. तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? कोडोमिनेंस बोलते हैं. So that's why IA and IB blood group is the example of कोडोमिनेंस. और इसीलिए IA और IB जो ब्लड ग्रुप है हमारा, ये काहे का एग्जाम्पल है? कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है. क्लियर हो गई बात? समझ आ गया? ये नहीं आया? पक्का? Why AB is example of codominance? Because both are expressing itself. क्योंकि यहाँ पर दोनों क्या कर रहे हैं? अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं. So that's why this is again the example of codominance. And we know that in codominance both the allele express itself. दोनों ही एलिल क्या होते हैं? एक्सप्रेस होते हैं phenotypically. क्लियर हो गई बात? चलिए. So in the next part we will be discussing about the non-allelic interactions. non-allelic interactions के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? और non-allelic interactions में भी हमने जो एग्जाम्पल पढ़े हैं लाइक कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन, राइट, एपिस्टेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इनको हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे. Prior to this we have another thing, multiple allelism we are also discussing in the एलिलिक इंट्रैक्शन. एलिलिक इंट्रैक्शन में ही हम एक और एग्जाम्पल क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म. ठीक है? सो मल्टीपल एलिलिज्म का जो आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे, हेयर द एग्जाम्पल इज अगेन ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम. ठीक है? जिसको डिस्क्राइब किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने, राइट? इट वाज डिस्क्राइब्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम. ठीक है? जिसमें हम एग्जांपल पढ़ेंगे कहीं का? मल्टीपल एलिलिज्म का. मल्टीपल एलिलिज्म मींस व्हाट? वेयर the multiple alleles are responsible for controlling only a single trait or a single character. जब एक ही कैरेक्टर दो से ज़्यादा एलील क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं. तो आपने क्या देखा? ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में, इन ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम here we have 3 alleles. Here we have 3 alleles and these 3 alleles controlling only one character. और ये क्या कर रहे हैं? एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, दैट इज ब्लड ग्रुप. ब्लड ग्रुप. तो इस तरह का जो इनहेरिटेंस है उसे हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल एलिलिज्म बोलते हैं. क्लियर हो गई बात? सो इन मल्टीपल एलिलिज्म व्हाट वी हैव सीन द डिफरेंट दीज 3, ये जो 3 जीनोटाइप्स आपके हैं, ठीक है, दे कैन बी फॉर्म्स द 6 मल्टीपल जीनोटाइप. ये क्या बना सकते हैं? 6 जीनोटाइप क्या कर सकते हैं? फॉर्म कर सकते हैं. क्लियर हो गई बात? कौन कौन से 6 जीनोटाइप ये बना सकते हैं? दिस वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट
lecture. Clear?